2.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसमें का क्वेश्चन है इफ 2 sin a is equal to 1 is equal to root 2 cos b and the ranges of angle a and b are given. According to this range, the a angle is in which quadrant? Pi by 2. A is greater than pi by 2 and less than pi. That means a is in second quadrant, while b is in 3 pi by 2, means b is greater than 3 pi by 2 and less than 2 pi. So it is in fourth quadrant. This is our conclusion according to this given part. या given part को अपने conclusion किया. A is in second quadrant while B is in fourth quadrant. Now we have to find out tan A plus tan B divided by cos A minus cos B. For this function or for this equation, we have to find out value of tan A, tan B, cos A, cos B. Okay? With the help of this equation, the equation is like this: 2 sin A is equal to 1. Therefore, we can write here sin A is equal to 1 by 2. Correct? Sin A is equal to 1 by 2. Then we have one identity. The identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, addition, that's why no problem. Now we have here sin square. Sin A की value, so the identity will change with respect to angle, such as sin square A plus cos square A is equal to 1. Here we have value of sin A, so this equation will become cos square A is equal to 1 minus sin square A. Now substituting the values, 1 minus sin A having value 1 by 2, so sin square A means 1 by 2 square, that will become 1 by 4, and this value will rise as 3 by 4. Its value will become which value? Cos square A having value 3 by 4. If cos square A is equal to 3 by 4, therefore cos A is equal to, taking square root on both sides. As we are taking square root on both sides, so cos square A become cos A, and 3 become root 3, and 4 become 2. As taking square term of perfect square, therefore or any term, square root of any term becomes plus or minus values. It comes with plus or minus sign. As cos A is equal to plus or minus root 3 by 2. Now again we are checking A angle is present in second quadrant, as we know that in second quadrant only sine and cosec are positive. So here the value of cos A is equal to minus root 3 by 2. Understood? Here we have taken value of cos A. Now the remaining part of this equation is root 2 into cos B is equal to 1. Therefore cos B is equal to 1 by root 2. Cos B is equal to 1 by root 2. Now as we know that cos B is equal to 1 by root 2, then again we are having cos square theta plus sin square theta is equal to 1, changing the angle with B. Therefore cos square B plus sin square B is equal to 1. Again rewriting the term, because we have to find out here sin B. Sin B की value हमें find out करनी है. So it will become sin square B is equal to 1 minus cos square B. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये cos b की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर यहाँ पर बन जाता है फिर sin square b is equal to 1 minus cos square b, मतलब 1 divided by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. अब देखिए sin square b की वैल्यू क्या मिली हमें 1 by 2. ठीक है, sin square b is equal to 1 by 2 है, तो sin b की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, sin b is equal to plus or minus 1 by root 2. क्यों? क्योंकि हमें पता है sin square b स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो वो प्लस और माइनस सब वैल्यू आनी वैल्यू. अब अगेन चेकिंग द वैल्यूज ऑफ बी. बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. देयरफॉर यहाँ पर ये साइन की जो वैल्यू है दैट विल बिकम नेगेटिव माइनस. सो साइन बी इज इक्वल टू माइनस 1 by root 2.
अब देखो हमें कौन कौन से वैल्यू चाहिए थे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये जो फाइनल हमें इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसके लिए चाहिए था cos A फिर cos B। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड cos A, हियर cos B तो हमें इक्वेशन से ही मिल गया। फिर चाहिए था हमें tan A tan B। tan A tan B मतलब क्या करते हैं हम, वी नो द इंटर रिलेशन बिटवीन tan sin and cos, we know that tan theta is equal to sin divided by cos, correct? Now finding the value of first tan A, so tan A will become, tan A is equal to sin upon cos, means sin A upon cos A, sin A, where it is sin A here, it is 1 by 2 divided by cos A is minus root 3 by 2. So 2 will get cancelled, answer is minus 1 by 3 for tan A only. Now tan B. Tan B becomes sin B upon cos B. So sin B, here it is sin B, minus 1 by root 2 divided by, here cos B, 1 by root 2. It will become minus 1. Now substituting the values in this equation. Tan A plus tan B divided by cos A minus cos B is equal to tan A, देखो tan A की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस tan B, लेकिन tan B की वैल्यू माइनस है तो वो प्लस इंटू माइनस ये माइनस रहेगा, डिवाइडेड बाय cos A, हियर इट इज cos A, माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस cos B इज माइनस 1 बाय रूट 2। अब यहाँ से आगे इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कैसा करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको निगेटिव साइन यहाँ पर नहीं चाहिए, माइनस साइन न्यूमरेटर से माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लो, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है फिर वो कैंसिल करने के बाद 1 बाय रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। ये हो गया हमारे माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद के कैलकुलेशन। हमारी लास्ट स्टेप में यह वैल्यू हमें मिली थी कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय cos A माइनस cos B इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ये मिला था। अब इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे ये आएगा हमारा 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय ये रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, इसका जब हम करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 2, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो फिलहाल के लिए, रूट 3 इंटू रूट 2 ओनली। क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। अब उसमें से रूट 2 अगर हम कॉमन निकाले तो देखिए जब हम a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय c अपॉन डी जब होता है तो ये डिवीजन वाला जो साइन है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, आपने पढ़ा है ये। तो ये क्या रहेगा फिर 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 2 रूट 2 यहाँ पर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से रूट 2 कॉमन निकालता हूँ। रूट 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में रूट 3, ठीक है। तो ये रूट 2 यहाँ पर आया, ये रूट 3 प्लस ये रूट 2, क्योंकि 2 में से एक रूट 2 आपने कॉमन निकाला तो दूसरा रूट 2 तो वही पे रहेगा ना, ठीक है। अब देखिए ये रूट 2 हो गया कैंसिल, ओके। तो अब आगे जाके देखिए इसका क्या सोल्यूशन मिलता है हमें, 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 अभी रखा, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय cos A माइनस cos B। इसका आंसर ये आया हमें, ठीक। देखिए अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है sin A अपॉन 3 इज इक्वल टू sin B अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाय 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, 4 cos A प्लस 3 cos B इज इक्वल टू माइनस 5। इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिया sin A अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बाय 5 ये रेशो, जिसमें से हमें मिला sin A इज इक्वल टू 3 बाय 5, ठीक है। कैसे मिला, ये 3 इधर ट्रांसफर कर दिया तो sin A की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली दूसरा रेशो लिया, फिर sin B अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाय 5, sin B इज इक्वल टू फिर ये 4 को भी ट्रांसफर किया तो बन गया 4 बाय 5। और ये गिवन कंडीशन है कि A एंड B आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां पर हम थीटा को रिप्लेस करेंगे A एंगल से, तो हमें मिलेगी cos स्क्वायर A की वैल्यू। देखिए जैसे cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A।
साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, उसका स्क्वायर करेंगे वो मिलेगा हमें 9/25 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 मतलब 16/25। अगर ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है तो कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या मिलने वाली है हमें, ऑब्वियसली प्लस और माइनस 4/5। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ए एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस ए की आने वाली वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू हो गया -4/5। ठीक है, कॉस ए इज निगेटिव। निगेटिव क्यों है, क्योंकि ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब ये कॉस ए इज इक्वल टू -4/5 है, आगे ये नहीं किया तो भी चलता है हमें। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा कॉस थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे फिर से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस बी फ्रॉम दिस साइन बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करे हमने 1 माइनस, फिर साइन की वैल्यू हमारे पास थी 4/5, उसका स्क्वायर किया हमने तो वो आ गया 16/25। तो 1 माइनस 16/25 है, तो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू फिर हो गया 1 माइनस 16/25 मतलब 9/25। यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट लेते वक्त यहाँ पर आ जाती है प्लस और माइनस वैल्यू, क्योंकि b इज इन सेकंड क्वाड्रेंट ये हमें गिवन था, इसलिए यहाँ पर भी cos की वैल्यू आती है निगेटिव, सो cos b इज इक्वल टू -3/5। अब ये हमें कुछ वैल्यूज मिले, अब क्या करना है हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसकी 4 cos a प्लस 3 cos b इज इक्वल टू -5, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 cos a प्लस 3 cos b, जो जो हमें वैल्यूज मिले हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये 4 इंटू cos a की वैल्यू देखो, cos a की वैल्यू क्या है -4/5 प्लस 3 इंटू cos b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए -3/5। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 4 इंटू -4 इज -16/5 प्लस 3 इंटू -3 दैट इज -9/5। चलिए देखिए -16 -9 बेसिस सेम है, वो हो जाएगा -25/5 दैट इज इक्वल टू -5। मुझे लगता है ये प्रूव हो चुका है जो हमें करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा है, if tan theta is equal to 1/2 then we have to find the value of 2 sin theta plus 3 cos theta divided by 4 cos theta plus 3 sin theta is equal to how much। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर साइन और कॉस ये दो वैल्यूज निकालने हैं विद द गिवन इक्वेशन दैट गिवन वैल्यू tan theta is equal to 1/2। अब tan थीटा गिवन है, tan से सीधा हमें रेशो पता है sin अपॉन cos, लेकिन यहाँ पर sin अपॉन cos हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें यह करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी। सेक थीटा की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से, तो सेक के हिसाब से हम फिर कॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब जब ये हम सेक फाइंड आउट करेंगे तो अभी यह देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर चाहिए, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए देखिए क्या मिलेगा हमें, 4 + 1 इज 5, तो ये मिलेगा हमें 5/4। किसकी वैल्यू आई है हमारी, सेक स्क्वायर की। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर हमें मिल रहा है 5/4, तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू √5/2। सेक थीटा इज √5/2, ये सेक मिला। अगर सेक √5/2 है तो इससे कॉस की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। टैन फंक्शन देखिए, टैन फंक्शन पॉजिटिव कब रहता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको जो ये पॉजिटिव है इसको हम फर्स्ट और थर्ड में अगर कंसिडर करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर कंसिडर करते तो सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि थीटा फर्स्ट में है या सेकंड में, उसके थीटा की कुछ रेंज भी गिवन नहीं है।
ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल से अगर आप चेक करो तो फर्स्ट में हमें रेंज गिवन थी कि ए और बी जो एंगल है उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक π/2 तक, 2 से पाई तक, या 3π/2 से 2π तक। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए और बी किस क्वाड्रेंट में है वो डायरेक्टली गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये प्रोसीजर फॉलो करनी है कि जब देखिए यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू अगर प्लस और माइनस हमें वैल्यू मिली है तो इसके दोनों भी वैल्यू हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है इंटर रिलेशन हमने पढ़े हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/सेक। तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब प्लस और माइनस 2/√5, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस 2/√5 तो मिल गया हमें। अब ये कॉस थीटा जो है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर कॉस 2/√5 है तो यहाँ पर ये कॉस थीटा की वैल्यू तो मिल गई। अब कॉस से हमें बस साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको लगता होगा सर आपने तो एक एग्जांपल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर लिया है, एक में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ले रहे हो, बेटा वो एडिशन में इसलिए कोई उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस √5 स्क्वायर इज 5, 5 माइनस 4 दैट इज 1/5। ये आ गया हमारे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब साइन स्क्वायर थीटा अगर हमारा 1/5 है, साइन थीटा हम निकाल रहे हैं, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा तो प्लस 1/5। अब ये वैल्यू पुट करके हम इसकी जो इवैल्यूएशन है वो फाइंड आउट करेंगे। चलिए आप देखते हैं वो क्या आएगा, 2 इंटू साइन थीटा मतलब 2 इंटू 1/5, 1/√5 यहाँ पर आएगा 1/√5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा मतलब 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 2/√5 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस थीटा, 4 इंटू कॉस मतलब 2/√5 प्लस 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 1/√5। कैलकुलेशन करने है बस, मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर तो सेम है। देखिए 2/√5, आगे की स्टेप स्किप कर देता हूँ मैं आपको, 2/√5 प्लस 6/√5 होल डिवाइडेड बाय 8/√5 प्लस 3/√5। अब देखिए √5 बेस सेम है तो ये 6 प्लस 2 इज 8/√5 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 इज 11/√5। √5 अगर हम कैंसिल कर दे यहाँ पे तो आंसर मिलता है 8/11, ठीक है। आंसर क्या है हमारा 8/11 while we are considering theta is in first quadrant। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो थीटा अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, वहां पर सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, सेक की वैल्यू अब वहां पर निगेटिव होगी, मतलब cos जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, therefore cos थीटा इज इक्वल टू -2/√5। अगर cos -2/√5 है तो साइन की वैल्यू निकालेंगे हम बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब ये 1 माइनस 4/5। आप कहोगे सर ये तो माइनस साइन है, लेकिन इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो उसका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये बन गया फिर से 1/5। अगर साइन स्क्वायर 1/5 है तो साइन थीटा, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, सिर्फ tan कॉट वाले जो टर्म है वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू क्या मिलेगी -1/√5, ठीक है। ये साइन की वैल्यू वो कॉस की वैल्यू, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ये मिलेगा क्या हमें 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब -1/√5 फिर प्लस 3 इंटू कॉस मतलब -2/√5 डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू कॉस मतलब -2/√5 प्लस 3 इंटू -1/√5, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे अंदर,
मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, देखिए 2 इंटू -1 दैट इज -2/√5 -6/√5 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2 -8 डिवाइडेड बाय √5 -3 डिवाइडेड बाय √5। माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन निकाला माइनस साइन, तो मैंने देखिए क्या किया, अब ये माइनस साइन कॉमन नहीं भी निकाले, सीधा कैलकुलेशन किए तो भी चलता है, -8/√5 होल डिवाइडेड बाय -11/√5। ये माइनस साइन कैंसिल, ये √5 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 8/11। मतलब आप दोनों मेथड से अगर सॉल्व करते हो तो आंसर उसका सेम आता है 8/11। नंबर 4 जो है उसमें हमें थीटा एलिमिनेट करना है। आपने 10th में ऐसे एग्जांपल देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो थीटा एलिमिनेट करना मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में हमें जो भी थीटा गिवन है उस थीटा को एलिमिनेट करना, मतलब उस क्वेश्चन में से हटा देना। हटा देना मतलब उसका ये नहीं होता कि उसको थीटा दिखाया तो उसको कट कर दी, ठीक है, उसको हमें बाय यूजिंग आइडेंटिटी एलिमिनेट करना पड़ता है। क्वेश्चन में जो है वो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर अगर यहाँ से हम अगर देखें तो ये बन जाता है, फिर सेक थीटा की अगर वहां से वैल्यू निकाले हम तो बन जाती है x/3, और टैन थीटा की अगर वैल्यू निकाले टैन थीटा तो बन जाती है y/-4। y/-4 है, ये x/3 है, तो इसको अगर एलिमिनेट करना है तो ये आइडेंटिटी मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x²/9, और ये बनता है फिर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y²/16। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करें अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ये वैल्यूज, सेक स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे x²/9 माइनस टैन स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हम y²/16 इज इक्वल टू 1, वेयर वी आर एलिमिनेटेड द थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना इजी तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा है हमारे पास सेम ऐसा ही है कि x इज इक्वल टू 6 इंटू कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू है 8 कॉट थीटा। तो क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी हमें यूज करनी है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई वी आर using derived identity, that is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें वैल्यू चाहिए कोसेक और कॉट की। कोसेक की वैल्यू यहाँ से मिलती है हमें, that is cosec theta is equal to x/6 and cot theta is equal to y/8। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर देना है। तो कोसेक का अगर स्क्वायर करें तो वो बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x²/36, और अगर कॉट का स्क्वायर करें तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू y² डिवाइडेड बाय 64। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो वो बन जाएगा हमारा x² डिवाइडेड बाय 36 माइनस y² डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आ गया सोल्यूशन, क्योंकि उसमें वो थोड़ा अलग दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसको सिर्फ स्क्वायर एंड ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, तो ये हो जाता है x² + y² इज इक्वल टू, ऐड किया LHS to LHS स्क्वायरिंग एडिंग x² + y², RHS वाले टर्म स्क्वायर प्लस दूसरी RHS वाले टर्म का स्क्वायर, देयरफॉर ये हो गया x² + y² इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करेंगे 2 इंटू ab। अब ये a स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 इज 40
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये 16 कॉस स्क्वायर और ये 16 साइन स्क्वायर, इसमें से 16 कॉमन निकला, मतलब ये बच गया यहाँ पे 16 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये 25 साइन स्क्वायर और ये 25 यहाँ पर कॉस होना चाहिए, ये 25 कॉस स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे 25 अगर हम कॉमन निकालेंगे प्लस 25 कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पर भी बच गया फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेटा हुआ एज इट इज, यहाँ पर भी बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25, क्योंकि 16 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1, अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41।